Good morning, students. I'm RK. Today I am going to teach you one more interesting story, The Kite Maker, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian writer of British descent. He was born on 19 May 1934 in Kasauli district, Sonal of Himachal Pradesh. He is considered as the children's author and the top novelist who has been an icon for Indian authors. In 1992, he received the Sahitya Academy Award for his short story collection Our Trees Still Grow in Dehra, and he was awarded Padam Shri in 1999 for his contribution to children's literature. His first novel was The Room on the Roof, and he has written over 300 short stories, essays, novels, and more than 30 books for children. His important works are as The Room on the Roof, The Blue Umbrella, Cherry Tree, Delhi is Not Far, A Fight of Pigeons, and The Tiger in the Tunnels. So student, now I shall tell you about this story in brief. In this story, the author describes the easy and simple life of earlier days. And in his opinion, the kite maker had also his prestige. The people had affection for one another, and the author remembers those sweet days through the characters of old Mahmud the kite maker. When Mahmud was young, he was honored for his art of kite making. In those days, kite flying was the hobby of Nawab, and the people were quite tension free. They were not in hurry and worry. But now Mahmud has become old. He is not able to make kite. On the other hand, people also have lost their interest in kite flying. They are busy in earning and spending, and they do not care for the old kite maker. So in the end of the story, a feeling of pathos is created by the story writer, and the death of the kite maker signifies the values and the lifestyle of the days gone by. So student, this was the brief summary of this story, and now we shall read this lesson with the help of text. So student, let's read this lesson. An ancient banyan, एक प्राचीन बरगद का वृक्ष, which had grown through the cracks of an abandoned mosque, एक प्राचीन बरगद का वृक्ष जो एक वीरान मस्जिद की दरारों से होकर उग आया था, was the only tree, एकमात्र वृक्ष था, in the street, उस गली में, known as गली रामनाथ, जो गली रामनाथ के नाम से जानी जाती थी. एंड लिटिल अलीज काइट, और छोटे अली की पतंग, हैड कॉट, फंस गई थी, इन इट्स ब्रांचेज, इसकी शाखाओं में छोटे अली की पतंग फंस गई थी. द बॉय, वो लड़का, वह लड़का, बेयरफुट एंड क्लैड ओनली इन ए टोन शर्ट, वह लड़का जो नंगे पैर और सिर्फ एक फटी हुई शर्ट पहने हुए था, क्लैड इन पहने हुए था, टोन शर्ट फटी हुई शर्ट पहने हुए था, रैन अलोंग, दौड़ा, दौड़कर पहुंचा, द कोबल्ड स्टोन्स ऑफ द नैरो स्ट्रीट, तंग गली के उन गोल और चिकने पत्थरों पर दौड़कर उस तरफ पहुंचा, वेयर मीन्स जहां, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा, जहां उसके दादा अपने घर के पीछे के आंगन की धूप में स्वप्न देखते हुए से और ऊँघते हुए से बैठे थे. यानी वह लड़का जो नंगे पैर और सिर्फ एक फटी हुई शर्ट पहने हुए था, तंग गली के उन गोल और चिकने पत्थरों पर दौड़कर वहां पहुंचा, वेयर, जहां, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा, सेट, बैठे थे, नोडिंगली, ड्रीमिली, इन द सनशाइन ऑफ देयर बैक कॉर्डियार्ड, जहां उसके दादा अपने घर के पीछे के आंगन की धूप में स्वप्न देखते हुए से और ऊँघते हुए से बैठे थे. नेक्स्ट, ग्रैंडफादर साउटेड द बॉय, दादाजी, लड़का चिल्लाया, द काइट हैज़ गॉन, पतंग चली गई है. द ओल्ड मैन वोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम्स विद ए स्टार्ट, बूढ़ा व्यक्ति विद ए स्टार्ट में चौंक करके अपने दिवा स्वप्न से जाग पड़ा. एंड रेजिंग हिज हेड, रेजिंग उठाते हुए, हिज हेड अपने सर को, डिस्प्लेड उसने दिखाई,
अ बियर्ड, उस दाढ़ी को दिखाया, विच वुड हैव बीन वाइट, जो सफ़ेद हो गई होती, हैड मीन्स इफ, यदि, इट नॉट बीन डाइड विद मेहंदी लीव्स, यदि इसे मेहंदी की पत्तियों से रंगा ना गया होता तो ये सफ़ेद हो गई होती। डिड द ट्विन ब्रेक, ही आस्क, दादाजी ने पूछा, क्या डोर टूट गई? आई नो, मुझे मालूम है, दैट काइट ट्विन, काइट की डोर, इज़ नॉट, अब ऐसी नहीं होती, वॉट इट यूज टू बी, जैसी ये पहले हुआ करती थी। मीन्स दादाजी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि पतंग की डोर आजकल ऐसी नहीं होती जैसी पहले ये हुआ करती थी। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी, द काइट इज स्टक इन द बनियान ट्री, पतंग बरगद के पेड़ में अटक गई है। द ओल्ड मैन चकल्ड, चकल्ड मीन्स होता है लाफ्ड क्वाइटली, बूढ़ा व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया। यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई ए काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड, यू हैव येट टू लर्न, तुम्हें अभी सीखना है, तुम्हें अभी सीखना है, मेरे बच्चे, तुम्हें अभी सीखना है एक पतंग को ठीक से कैसे उड़ाते हैं। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, और मैं इतना बूढ़ा हूँ कि तुम्हें सिखा नहीं सकता हूँ। दैट इज़ द पिटी ऑफ इट, बस यही अफसोस की बात है। बट यू शैल हैव अनदर, तुम्हें दूसरी पतंग मिलेगी। ही हैड जस्ट फिनिश्ड, ही हैड जस्ट फिनिश्ड, उसने अभी अभी फिनिश करके रखी थी। ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग ए न्यू काइट, उसने अभी अभी एक नई पतंग बना के रखी थी। फ्रॉम बैम्बो, बांस से, पेपर, पेपर से, एंड थिन सिल्क, और पतली रेशम से, उसने अभी अभी बांस, पेपर और पतली रेशम से एक नई पतंग बना के रखी थी। एंड इट ले इन द सन, ये धूप में पड़ी हुई थी। एंड फर्मिंग अप, और सूख रही थी। इट वॉज अ पेल पिंक काइट विद ए स्मॉल ग्रीन टेल, यह एक छोटी हरी पूंछ वाली पीली गुलाबी पतंग थी। द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली, बूढ़े व्यक्ति ने इसे अली को दे दिया। एंड द बॉय, वो लड़का, रेज्ड हिमसेल्फ, उस लड़के ने अपने आप को उठाया। ऑन हिज टोज, यानी लड़के ने अपने आप को अपने पैरों के बल पर उचकाया, ऊपर को उठा। एंड किस किया हिज ग्रैंडफादर्स होलोड आउट चीक, किस किया अपने दादा के हॉलोड आउट चीक, अपने दादा के गड्ढे पड़े हुए गालों को किस किया। आई विल नॉट लॉस दिस वन, मैं इस पतंग को नहीं खोऊंगा। ही सेड, उसने कहा। दिस काइट विल फ्लाई लाइक द बर्ड, लाइक ए बर्ड, यह पतंग एक पक्षी की तरह से उड़ेगी। द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, रिमेन्ड ड्रीमिंग इन द सन, बूढ़ा व्यक्ति धूप में स्वप्न देखता रहा। हिज काइट शॉप, उसकी पतंग की दुकान, हैड गॉन, जा चुकी थी। द प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस कहते हैं वो अहाता जिसमें उसकी बिल्डिंग थी। द प्रीमाइसिस हैव बीन सोल्ड मैनी ईयर्स एगो टू ए जंक डीलर, जंक डीलर मीन्स एक कबाड़ी, मतलब उसकी वो पतंग की दुकान, मतलब वो अहाता जिसमें उसकी दुकान थी, वो कई साल पहले एक कबाड़ी को बेच दी गई थी। हैविंग बीन सोल्ड, बेच दी गई थी। मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, टू ए जंक डीलर, एक कबाड़ी को बेच दी गई थी। बट ही स्टिल, लेकिन वो अभी भी मेड, बनाता था, काइट्स, पतंग, फॉर हिज ओन एम्यूजमेंट, अपने खुद के मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। एंड एज प्ले थिंग फॉर हिज ग्रैंडसन अली, और अपने पोते अली के खिलौनों के तौर पर वो अभी भी पतंग बनाता था। नॉट मैनी पीपल बॉट काइट्स दीज डेज, इन दिनों मीन्स आजकल बहुत से लोग उससे पतंग नहीं खरीदते थे। एडल्ट्स, वयस्क, डिसडेन देम, उन्हें तुच्छ समझते थे। एंड चिल्ड्रन, बच्चे, प्रीफर टू स्पेंड देयर मनी एट द मूवीज़, और बच्चे फिल्मों पर अपना पैसा खर्च करना अधिक पसंद करते थे। चिल्ड्रन, बच्चे, प्रीफर, अधिक पसंद करते थे, टू स्पेंड, खर्च करना, देयर मनी, अपना पैसा, एट द मूवीज़, फिल्मों पर, बच्चे फिल्मों पर अपना पैसा खर्च करना अधिक पसंद करते थे। मोर ओवर, इसके अलावा, देयर वर फ्यू ओपन स्पेसेस लेफ्ट फॉर फ्लाइंग काइट्स, इसके अलावा पतंग उड़ाने के लिए केवल कुछ ही खुले मैदान शेष रह गए थे। इसके अलावा पतंग उड़ाने के लिए केवल कुछ ही खुले मैदान शेष रह गए थे। देयर वर फ्यू ओपन स्पेसेस, कुछ ही खुले स्पेसेस, मैदान,
लेफ्ट मीन्स कुछ ही खुले मैदान शेष रह गए थे फॉर फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने के लिए। द सिटी हैड स्वेलोड अप द ग्रीन मैदान, शहर ने निगल लिया था। द सिटी हैड स्वेलोड अप, शहर ने निगल लिया था। द ग्रीन मैदान, उस हरे मैदान को निगल लिया था। विच हैड स्ट्रेच्ड, जो फैला हुआ था। फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट वॉल्स टू द रिवर बैंक, शहर ने उस हरे मैदान को निगल लिया था जो पुराने किले की दीवारों से नदी के किनारे तक फैला हुआ था, उसे शहर ने निगल लिया था। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड अ टाइम, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को उस समय याद है। वैन ग्रोन अप्स फ्लू काइट्स फ्रॉम द मैदान हिमसेल्फ, बूढ़े व्यक्ति को उस समय याद है जब वयस्क लोग फ्लू काइट्स पतंग उड़ाते थे फ्रॉम द मैदान, मैदान से, हिमसेल्फ खुद। बूढ़े व्यक्ति को उस समय याद है जब वयस्क स्वयं मैदान से पतंग उड़ाया करते थे। एंड ग्रेट बैटल्स वर फॉट, और पतंगों की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। एंड द काइट्स, और पतंगे, स्वेर्विंग, हिलती डुलती, स्वेर्विंग मतलब हिलती डुलती, एंड स्वीपिंग, झपट्टा मारती हुई। स्वेर्विंग मीन्स होता है मूविंग दिस वे और दैट वे। स्वीपिंग का मतलब होता है कमिंग डाउन विद ए रश। स्वेर्विंग हिलती डुलती, स्वीपिंग झपट्टा मारना, और पतंगे हिलती डुलती और आसमान में झपट्टा मारती हुई, टैंगलिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से उस समय तक उलझी रहती थी। अनटिल, जब तक कि द स्ट्रिंज ऑफ वन वाज कट, जब तक कि किसी एक की डोर नहीं कट जाती थी। फिर से देखो, द काइट्स, पतंगे, स्वेर्विंग, हिलती डुलती हुई, एंड स्वीपिंग, झपट्टा मारती हुई, इन द स्काई, आसमान में, टैंगलिंग विद ईच अदर्स, पतंगे आसमान में हिलती डुलती और झपट्टा मारती हुई उस समय तक एक दूसरे से उलझी रहती थी जब तक कि किसी एक की डोर नहीं कट जाती थी। देन, तब, द बीटन, वो कटी हुई पतंग, परंतु एक लिबरेटेड काइट, स्वतंत्र पतंग के रूप में, वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन, उस नीले आकाश में, नीले गगन में तैरती हुई चली जाती थी। देयर वॉज अ गुड डील ऑफ बैटिंग्स, पतंगों के दांव पेंच पर बड़ी बड़ी बाजियां लगाई जाती थी। देयर वॉज ए गुड डील ऑफ बैटिंग, बड़ी बड़ी बाजियां लगती थी पतंगों के दांव पेंच पर। एंड मनी फ्रिक्वेंटली चेंज्ड हैंड्स, मनी, पैसा, फ्रिक्वेंटली, अक्सर, चेंज्ड हैंड्स, पैसा अक्सर एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता था। काइट फ्लाइंग वॉज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स, पतंग उड़ाना तब नवाबों का खेल हुआ करता था। द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, बूढ़े व्यक्ति को याद था। हाउ, किस प्रकार, नवाब हिमसेल्फ, नवाब खुद, वुड कम डाउन, आ जाया करता था, टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर आ जाया करता था। विद हिज रेटाइन्यू, अपने लावा लश्कर के साथ, अपने दल बल के साथ, नवाब खुद किस प्रकार नदी के किनारे पर आ जाया करता था। टू ज्वाइन करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, इन दिस नोबल पास टाइम, इन दिस नोबल पास टाइम, इस शानदार खेल में हिस्सा लेने के लिए। मीन्स बूढ़े व्यक्ति को समय याद है कि किस प्रकार नवाब खुद अपने लावा लश्कर के साथ इस शानदार खेल में हिस्सा लेने के लिए नदी के किनारे पर आ जाया करता था। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वाज टाइम, समय होता था, टू स्पेंड, बिताने के लिए, एन आइडल आवर, एक अवकाश का घंटा बिताने के लिए, विद ए गे, एक चमकदार, डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर। उन दिनों पतंग रूपी चमकदार, उन दिनों पतंग रूपी चमकदार और नाचते हुए कागज के टुकड़े के साथ बिताने के लिए अवकाश का एक खाली घंटा लोगों के पास होता था। देयर वाज टाइम, समय होता था, लोगों के पास समय होता था, टू स्पेंड, बिताने के लिए, एन आइडल आवर, मीन्स एक अवकाश का खाली घंटा, विद गे, एक चमकदार और कागज के नाचते हुए टुकड़े के साथ बिताने के लिए लोगों के पास समय होता था। नाउ एवरीवन हरीड इन ए हीट ऑफ होप, अब हर कोई आशा के जोश में उतावला होकर के हरीड करता है, जल्दबाजी करता है। और अब हर कोई आशा के जोश में उतावला होकर के हर कोई जल्दबाजी करता है। एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स, पतंगे और दीवा सपनों के जैसी कोमल वस्तुएं वर ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और अब पतंगों और दीवा सपनों के जैसी वस्तुएं, कोमल वस्तुएं पैरों के नीचे कुचल दी जाती हैं।
महमूद द काइट मेकर, पतंग बनाने वाला महमूद, हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। पतंग बनाने वाला महमूद हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। पतंग बनाने वाला महमूद अपनी युवा अवस्था में सारे शहर में प्रचलित था। Some of his more elaborate kites sold for as much as 3 or 4 rupees। उसकी कुछ शानदार पतंगे बिकती थी as much as 3 or 4 rupees, 3 या 4 रुपए में बिकती थी। At the request of the Nawab, he had once made a very special kind of kite। He had once, एक बार उसने नवाब की रिक्वेस्ट पर बनाई थी एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ काइट, एक बहुत ही विशेष प्रकार की पतंग बनाई थी। अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, जो कि इलाके में देखी गई किसी भी अन्य पतंग से बिल्कुल अलग थी। अनलाइक मतलब बिल्कुल अलग थी, एनी किसी भी पतंग से, दैट हैड बीन सीन जो देखी गई थी इन द डिस्ट्रिक्ट यानी उस समय इलाके में देखी गई किसी भी पतंग से बिल्कुल अलग थी। इट कंसिस्टेड ऑफ यानी इसमें थी ए सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग ऑन ए थिन बैम्बो फ्रेम। इसमें एक पतले बांस के ढांचे पर लटकी हुई बहुत छोटे और बहुत हल्के पेपर की, कागज की गोल गोल तस्तरियाँ थी, तस्तरियों की एक श्रृंखला थी। फिर से देखो, इसमें एक पतले बांस के ढांचे पर लटकी हुई छोटी बहुत हल्के पेपर के गोल गोल तस्तरियों की एक श्रृंखला थी। टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ ईच डिस्क, प्रत्येक डिस्क के सिरे पर ही हैड टाइड, उसने बांध दी थी, ए स्प्रिग ऑफ ग्रास, घास की एक टहनी बांध दी थी, फॉर बैलेंस के लिए। द सरफेस ऑफ द फॉरमोस्ट डिस्क, सबसे आगे वाली डिस्क की सतह वह स्लाइटली थोड़ी सी कन्वेक्स, बाहर की ओर उभरी हुई थी। एंड ए फंटास्टिक फेस वाज पेंटेड ऑन इट, और एक बहुत ही अद्भुत चेहरे को पेंट किया गया था इस पर, और इस पर एक अद्भुत चेहरे को पेंट किया गया था। विद द 2 आइज मेड ऑफ ए स्मॉल मिरर, छोटे छोटे शीशों से बनी हुई, छोटे छोटे कांच के शीशों से की बनी हुई 2 आँखें भी इसमें लगाई गई थी। एंड द डिस्क, विद तस्तरियाँ, डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल, और ये डिस्क जो है सिर से पूंछ की तरफ आकार में घटती रही थी, घटते हुए ये डिस्क सिर से पूंछ की तरफ आकार में घटते हुए दे रही थी द काइट, पतंग को, द अपीयरेंस, आकार, रूप या शक्ल दे रही थी, ऑफ ए क्रॉलिंग सरपेंट, सर से पूंछ की तरफ घटती हुई ये तस्तरियाँ एक रेंगते हुए सरपेंट में सांप का सा आकार पतंग को दे रही थी। इट रिक्वायर्ड, ज़रूरत थी, ग्रेट स्किल टू रेज दिस कम्बरसिंग डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड, और इस रिक्वायर्ड मीन्स ज़रूरत थी, बड़ी कुशलता की ज़रूरत थी, टू रेज उठाने के लिए, दिस कम्बरसिंग डिवाइस, इस भारी भरकम डिवाइस को उठाने के लिए, इस भारी भरकम डिवाइस को ज़मीन से उठाने के लिए बड़ी कुशलता की ज़रूरत थी। एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट, और केवल महमूद ही इसे संभाल सकता था। एवरीवन हैड ऑफ कोर्स, निश्चय ही हर किसी ने, हियर्ड मीन सुना था, ऑफ ड्रैगन काइट, सर्पाकार पतंग के विषय में सुना था। दैट महमूद हैड बिल्ट, जो महमूद ने बनाई थी। एंड वर्ड वेंट राउंड, चारों तरफ ये खबर पहुंच गई थी, खबर फैल गई थी, दैट की इट पॉजेज सुपर नेचुरल पावर्स, कि इसमें अलौकिक शक्ति है। ए लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़, असेंबल, इकट्ठा हो गई थी, ऑन द मैदान में, टू वॉच, देखने के लिए, इट्स फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द नवाब, और नवाब की प्रस्तुति में, नवाब की मौजूदगी में इसकी पहली सार्वजनिक उड़ान को देखने के लिए मैदान में एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एट द फर्स्ट अटैम्प्ट, पहले प्रयास में, इट डिड नॉट बज, ये हिली भी नहीं, फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से हिली भी नहीं। द डिस्क, तस्तरियों ने, मेड ए प्लेंटिटिव प्रोटेस्टिंग साउंड, तस्तरियों ने एक अजीब सी आवाज़ की, प्लेंटिटिव अजीब सी, प्रोटेस्टिंग प्रोटेस्ट करती हुई, विरोध करती हुई एक अजीब सी आवाज़ की। एंड द सन वाज ट्रैप्ड इन द लिटिल मिरर, और सूर्य इसके छोटे छोटे शीशों में प्रतिबिंबित हो गया।
मेकिंग बना रहा था काइट को एक लिविंग, एक सजीव, जीवंत, कंप्लेन करने वाला शिकायत बना रहा था। मीन्स ऐसा लग रहा था कि जैसे पतंग कोई एक सजीव वस्तु की तरह प्रतीत हो रही हो, सजीव प्राणी की तरह प्रतीत हो रही हो। सो स्टूडेंट, I shall have to stop here and I shall complete this lesson in my next video, and in that video I shall tell you some important explanation, short question and answer, and fill in the blanks. So student, if you like this video, do like and share to your brother, sister and your friends, and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon, because when I shall upload my next video, you will get the notification of that video first of all. So students, thank you very much.